आप देख रहे हैं न्यू पंजाब न्यूज, जहां हर खबर आपके लिए सबसे पहले। ओके हो गया न्यूज पंजाब न्यूज़। ओके न्यू पंजाब ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੇ ਇਜ਼ੀਕਲ ਜੋਸ਼ੀਆ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ 18 ਦਸੰਬਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੋ ਔਰ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰ। ਨया ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਏ ਬਲ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸਾਰੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਖੁਦਾਵੰ। ਅਤੇ ਖੁਦਾਵੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਫਸਟ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਰਕੁਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋਤਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ? ਆਨੰਦ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਮਾਚਾਰ, ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਲਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਭ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, God bless you, प्रभु bless करे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाच कर, नाच कर, नाच कर, नाच कर, सभी नाचे, जितने दूर खड़े हैं वो भी नाचे, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के लिए नाच रहे हैं, जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। तो जितने आनंदित हैं सभी नाचे, वो पीछे वाले भी हाथों को हिलाते हुए नाचते हुए खुदा की महिमा करें। सभी नाचते हुए, एक भी जन बिना नाचे न रहे, सब नाचते हुए। आपके हाथ ऐसे ऊंचा होने चाहिए क्योंकि उसने स्वर्ग को छोड़ दिया हमारे लिए, हमारे लिए पृथ्वी पर वो आया। अपने आनंद को दिखाए नाच कर, एक भी हाथ नीचे न हो, जो खुदा से प्रेम करते वो नाचे, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए नाच रहे हैं। खुशी
मुल्तान में दिल्ली आ गया, मुल्तान में दिल्ली आ गया, जेड़ा जेड़ा साडे तो कसूर हो गया। धरती ते पैदा होया नूर आसमानी, ओदे नूर नाल सारा जग नूर हो गया। धरती ते पैदा होया नूर आसमानी, ओदे नूर नाल सारा जग नूर हो गया। हर कोई खुशियां च गांदा है सलाम, जेड़े नूं जिवें होवे मिल के पना। साडियां बुराइयां दे वल्ले बोझनू चुक ना कोई सकदा सी यसू तो बिना। हर कोई खुशियां च सभी नाचो सभी जेड़े नूं जिवें होवे मिल के पना। साडियां बुराइयां दे वल्ले बोझनू चुक ना कोई सकदा सी। सभी सभी नाचे, अपने हाथों को हिला दो, सभी नाचते जाए। यसू राज राजा नासरी, यसू राज राजा नासरी, इह सारे जग विच मशहूर हो गया। धरती ते पैदा होया नूर आसमानी, ओदे नूर नाल सारा जग नूर हो गया। धरती ते पैदा होया नूर आसमानी, ओदे नूर नाल सारा जग नूर हो गया। हालेलुया 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 पुकारते जाए हालेलुया, पुकारते जाए जोर से जोर से। हालेलुया, तारीफ करो जोर से परमेश्वर की, जोर से जोर से जोर से। तो स्वागत करते हैं हम आपका, जितने लोग इस शोभा यात्रा में जुड़े हैं और से लेकर आऊं तक, तो हम सबका एक बार तालियों के साथ स्वागत करें, तालियों के साथ, तालियों के साथ, जोर से जोर से जोर से जोर से। तो एक ओके, अगर माइक सेट रहा तो हम करेंगे प्लीज, नहीं तो हम फिर चलते हैं यहाँ से। तो ये शोभा यात्रा और से लेकर नवांशहर तक जा रही है, और में परमेश्वर ने अपना एक भवन की स्थापना की है, और परमेश्वर की वहां पर चर्च है, वहां पर कलीसिया है, वहां पर परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते हैं। हर संडे बुधवार परमेश्वर का वचन सुनते हैं, प्रार्थनाएं होती है। और आज हम क्रिसमस की आपको बधाई देने के लिए, क्रिसमस का संदेश देने के लिए अपनी चर्च से निकले हैं कि हम राहों में जाएं, नवांशहर में जाएं, इस शहर में जिसमें परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी कलीसिया, एक चर्च को परमेश्वर ने खड़ा किया है। तो हमारा ये फर्ज है कि हम परमेश्वर के उस संदेश को लेकर पूरे शहर में जाएं और प्रभु यीशु के प्यार के बारे में बताएं। हालेलुया। तो आपको जितने भी लोग आसपास हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक बड़े आनंद का सुसमाचार है, और आप देखते हैं लोग हर पल में आनंद मनाते हैं, यात्रा में जा रहे हैं। ये आनंद का सुसमाचार क्या है आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं? वो आनंद का सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए इस दुनिया पर आए। यीशु मसीह कोई नया धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह कोई नई जात को बनाने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह धार्मिकता को स्थापित करने के लिए, मतलब एक मनुष्य का जो परमेश्वर से दूर हुआ है उससे मित्र करवाने के लिए इस दुनिया पर आए। जब आप एक फ्लेक्स लगे यहाँ पर, उसमें एक वचन लिखा है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो लोग उसे देखने के लिए आए, तो उनको एक बड़े आनंद का सुसमाचार, बड़े आनंद की खुशखबरी लोगों को मिली है। यीशु मसीह के बारे में सुनना, जब कोई व्यक्ति पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुनता है, यीशु मसीह का प्रचार सुनता है, तो उसके लिए एक बड़े आनंद की खुशखबरी बन जाती है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में जितने लोग यहाँ पर हैं, हम एक संदेश लेके आए हैं, तो आपको केवल आप दुकान में है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया विनती करता हूँ आपसे कि कृपया अपने कुछ समय के लिए अपने कामों को छोड़कर, अपने
अपने दुकानदार के सब कामों को छोड़कर इस वचन की ओर ध्यान दें, क्योंकि ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन परमेश्वर का है, पवित्र बाइबल का, जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा, हम सबके द्वारा यहाँ पर भेजा है। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर का, जो कोई मेरे भेजे हुए का आदर करता है, जो कोई मेरे भेजे हुए का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। अगर आप जितने भी लोग आसपास यहाँ से खड़े हैं, इस साउंड के द्वारा जितनी भी आवाज जहां तक पहुंच पा रही है, तो अगर ये आवाज केवल मुझे ही नहीं दी, क्योंकि मेरे लिए नहीं चाहिए, स्पीकर मुझे नहीं चाहिए, ये लोगों के लिए चाहिए। अगर यहाँ की टीम ने आपको अच्छा साउंड दिया है कि आप सब तक ये वचन पहुंच सके, तो जहां भी आप साउंड से आवाज सुन रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे वचन का आदर करता है, मेरे भेजे हुए का आदर करता है, वो मेरा आदर करता है। यहाँ पर अभी मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर के वचन को बताऊंगा आपके साथ, और अगर आप उसको सुनने के लिए अपनी बातों को बंद करें, अपने दोस्तों के साथ जो आपके आसपास लोग खड़े हैं, अगर थोड़ा समय भी अपनी लाइफ में साइलेंट हो जाएं और इस वचन की ओर ध्यान दे, तो परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरा वचन सुनने के मेरा आदर करेगा। कई लोग सोचते हैं कि मुझे क्या लेना देना, ये तो अंग्रेजों का गुरु है, ये तो क्रिश्चियनों का गुरु है, ये तो ऐसा वैसा, मीडिया में अपने हिसाब से जब लोगों से जो सुना होगा, एक सोच आपकी होती है। पर जब तक आप रियल को नहीं सुन लेते, रियल को देख नहीं लेते, तब तक आपकी वो सोच बुरी बनी रहती है। जैसे लोग कहते हैं कि बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। जब आप बुराई को सुनेंगे, बुरे को सुनेंगे, तो आपकी सोच वैसे ही हो जाती है। तो आज परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप सच्चाई को सुने और वो सच्चाई आपको आजाद करे। वो सच्चाई ये है कि जो मैं आपको आज बता रहा हूं, तो आपको इस वचन को सुनना है। जब मैं वहां से गाड़ी में हम आ रहे थे, तो मैंने कहा मेरे अंदर से एक आवाज निकली, राहों के लोग तैयार हो जाओ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। मेरे अंदर से ऐसे आवाज निकली, तो मैंने कहा परमेश्वर, तो मेरी आत्मा ने सीधा ही बताना शुरू किया। मैं नहीं सोच रहा था कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या प्रीच करना है, मैं कुछ भी सोच के नहीं आया। जैसे ही मैं आ रहा था और पवित्र आत्मा ने कहा अगर जीसस क्राइस्ट यहां पर आते तो वो क्या करते, मुझे प्रीच मिल गया। पवित्र आत्मा ने कहा अगर यीशु मसीह यहां पर इस नगर पे आज के समय में इस राहों में आते तो वो क्या बोलते, क्या करते यहां पर। और मेरा बिलीव है अगर पवित्र आत्मा की ओर से ये वचन है तो आपकी जिंदगी आज बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जो कोई भी इस वचन को सुनेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। तो आज आप ऐसे ना सोचे कि यहाँ पर कोई एक शोभा यात्रा निकल रही है। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और आप आदर कर रहे हैं इस बातों को सुनने का, तो इस आदर में आप ये समझें कि यहाँ पर यीशु मसीह, मैं भी नहीं हूं, यहाँ का मुख्य मेहमान मैं नहीं हूं। मैं तो एक उसके बारे में बताने के लिए मान लो आया कि यहाँ पर कौन आ रहे जी, मुख्य मेहमान आ रहे हमारे बीच में, तालियों स्वागत करें। तो वो कौन है? यहाँ का मुख्य मेहमान, स्टेज में आने वाला मुख्य मेहमान परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। उसके लिए स्वागत करें, जोर से तालियों के साथ स्वागत करें, जोर से जोर से जोर से। तो फिर आप बोलेंगे फिर आप कौन है? तो फिर आप कौन है? मैं केवल एक परमेश्वर के लिए एक जरिया हूं। परमेश्वर दुनिया पर इंसान के जीवन को बदलने के लिए इंसानों को उपयोग करता है, इंसानों के द्वारा बात करता है। अगर एक इंसान को प्रभु ने बात करनी है तो एक इंसान को वो यूज करेगा, उसके मुंह को यूज करेगा उसको समझाने के लिए। एक पक्षी आके इंसान को नहीं समझा सकता, एक जानवर आके इंसान को नहीं समझा सकता, एक पेड़ इंसान से बात नहीं कर सकता। तो इसीलिए परमेश्वर एक मनुष्य को यूज करता है कि उसको अपनी दया दिखा सके और बता सके परमेश्वर कि मैं एक मनुष्य से जो कह रहा है मैं तो दुखों में हूं, मैं तो बीमारियों में, अगर परमेश्वर है तो मेरी सहायता क्यों नहीं करता? मैं कर्जों में हूं, मेरी वाइफ बीमार है, मेरा हस्बैंड बीमार है, मेरा बच्चा नशों में है, मैं कर्जों में डूब चुका, मेरा कार्य नहीं चल रहा है, मेरा कोई काम सफल नहीं हो रहा है, मेरे नुकसान होते जा रहे हैं, मेरी लाइफ में बहुत से पाप, मेरी जिंदगी में बहुत सी कमियां, कमजोरियां, बुरी आदतें, एडिक्शन मुझे लग चुकी है, नशा मुझे लग चुका है। तो मैं इन चीजों को कैसे छोड़ूं? अगर परमेश्वर है तो मुझे वो बचा क्यों नहीं लेता? परमेश्वर आपको मौका देता है। आज परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है कि आप उस आवाज को सुने और परमेश्वर आपके जीवन में दया करे। बहुत आसान है, आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप इस आवाज को सुन ले। वो आपकी एक सेकंड में आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो जब आप इसे सुन रहे हैं तो आप इसे ये सोचें कि खुद यीशु मसीह परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, एक मनुष्य जो यहाँ पर खड़ा है माइक में बोल रहा है उसके द्वारा। और यीशु मसीह अब पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है? लेकिन बोलने वाले तुम नहीं, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर होके बोलेगा। तो स्वागत करें पवित्र आत्मा की आवाज का।
बाइबल में लिखा है भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चली और उसने उन्हें शारीरिक और मानसिक रोगों से चंगा किया। अगर यीशु मसीह यहां पर आते तो क्या करते पहले? आज पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। लिखा भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे हो ले। जहां आपको भीड़ दिखेगी वहां आपको जीसस क्राइस्ट मिलेंगे। हालेलुया। जहां जीसस क्राइस्ट होंगे, सीधा कह सकते हैं, वहां आपको भीड़ की भीड़ मिलेगी। हालेलुया। तो आज एक इतनी बड़ी भीड़ यहां पर क्यों इकट्ठी हो गई? तो ये कोई पैसों से इकट्ठे किए हुए लोग नहीं है, क्योंकि उनके चेहरे, उनकी रौनक, उनके हृदय बता रहे हैं कि वो परमेश्वर में खुश और आनंदित है। तो ये भीड़ क्यों? क्योंकि जहां जीसस है वहां पर भीड़ आएगी। क्यों? जीसस के पीछे क्यों भीड़ चलती थी? अगर हम देखें जीसस के पीछे क्यों भीड़ की भीड़ चलेगी? जब जीसस ने इसने दुनिया में आया, जिसने प्रीच किया, लोगों को कहा जाओ जाके सुसमाचार प्रचार करो। 12 चेले थे और उनको कहा जाओ जाके प्रचार करो। उन 12 ने जाके निकल के लिखा है प्रचार किया और 12 से लेकर 400 करोड़ कब क्रॉस हो गए आज पूरी दुनिया में, पता नहीं चला। इतनी भीड़ कैसे जीसस के पीछे आई? क्यों आई? क्योंकि लिखे भीड़ की भीड़ जीसस के पीछे हो ली और उसने उन्हें शारीरिक और मानसिक रोगों से चंगा किया। आज लोग बहुत सारे शारीरिक रोगों से तड़प रहे हैं, बीमारियों से तड़प रहे हैं, इलाज करवा करवा के थक चुके हैं। जब डॉक्टर के पास भी जाए, डॉक्टर भी कहता है कि अगर तेरी रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा तो मैं तुझे मेडिसिन क्या दूं? वो कहते हैं मेरी टेंशन, मेरा डिप्रेशन, मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, मेरी लाइफ में ये पाप है, मेरी लाइफ में कमजोरी है, मेरे शरीर में ये समस्या आ रही है। और डॉक्टर कह रहे हैं अगर ये रिपोर्ट में नहीं आ रही तो मैं इसकी मेडिसिन तुझे कहता, तुझे कुछ नहीं है। वो कहते तुम्हें क्या पता, मुझसे पूछ के देखो मैं कितना दुखी हूं। तो वो व्यक्ति कहता है, इसलिए कई वक्त आप अपने परिवार से शेयर करते हैं, वो आपको समझ नहीं पाते। कई बार डॉक्टर आपको समझ नहीं पाता, कई वक्त कोई रिश्तेदार, कोई लोग, आपका दोस्त भी आपको नहीं समझ पाता, आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपको नहीं समझ पाता। मैं आपको बताऊं, एक चीज आज यीशु मसीह आपको समझेगा भी, आपको उत्तर भी देगा। उसकी आंख है वो आपको देख रहा है इस समय, उसके कान है वो आपको सुन रहा है इस समय, उसका मुंह है और आज अपने दास के द्वारा वो बोल रहा है आपसे। तो आज भी यीशु मसीह शारीरिक और मानसिक रोगों से लोगों को चंगा करता है। अगर आपके जीवन में कोई शारीरिक रोग है, आपके शरीर में अभी कोई रोग है, मैं आपको बताऊं, अगर आप इस वचन को सुने, लास्ट में मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, सिंपल छोटी सी प्रार्थना करूंगा। अगर आप इस वचन को सुन के विश्वास करके उस छोटी सी प्रार्थना को ग्रहण करें, हाँ मैं यीशु मसीह के बारे में जानता नहीं, पर आज मुझे कुछ अच्छा लग रहा है सुन के, इसका मतलब जो अच्छाई है वो परमेश्वर की ओर से। अगर आपको कुछ बुरा फील हो, इसका मतलब वो शैतान की ओर से, पर अच्छाई परमेश्वर की ओर से। तो आपको बस कहना है, हे प्रभु यीशु मुझ पे दया कर, मेरी लाइफ में ये दुख है, मेरी लाइफ में ये परेशान है। अगर तू सचमुच परमेश्वर, अगर जो तेरा दास बोल रहा है, अगर ये बातें सच्ची है तो मुझे प्रूव कर। मैं क्या चैलेंज कर सकते हैं आप परमेश्वर को, तो मुझे प्रूव कर। मेरा परमेश्वर है जो तेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और तुझे उत्तर देगा, क्योंकि वो देखता है, वो सुनता है, वो बोलता है। वो मूर्ख नहीं है कि तुझे उत्तर ना दे। यहां पर कोई मूर्ख नहीं है परमेश्वर की, यीशु मसीह की, कि वो बोले ना, क्योंकि वो अपने दास के द्वारा, अपने वचन के द्वारा बात करता है, वो उत्तर देता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है, कोई भी रोग है, तो यीशु ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रोगों से चंगा किया। जैसे ही शोभा यात्रा में हम प्रार्थना करके चले जाएंगे, मैं आपको पवित्र आत्मा की ओर से बोलता हूं, आपकी लाइफ में जितने शारीरिक दुख है, जितने मानसिक दुख है, आज वो खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। केवल आपके ही नहीं, जितने लोग इस शोभा यात्रा में जुड़े हैं, रास्ते में देख देख कर जुड़े हैं कि हम भी चलते हैं साथ में, आशीष पाएंगे जीसस क्राइस्ट से, उनकी जिंदगियों में भी शारीरिक और मानसिक रोग दूर होंगे यीशु के नाम में। तो इसीलिए कई लोगों को मानसिक रोग है, उनको चिंता है, उनको डिप्रेशन है, उनको कोई उनको हल नहीं है, उनको डिप्रेशन की बातें सारी, चिंता है, उनको बोझ है, उनके ऊपर डर है, उनको घबराहट सी फील होती है, उनको अपनी लाइफ में एक हारा हुआ, एक असफल व्यक्ति, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूं, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं रिजेक्टेड हूं, मैं शर्मिंदगी में हूं, मेरे अंदर ये कमी है, ये पाप है, मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये गंदगी है। तो वो एक शर्मिंदगी के नीचे होते हैं। पर बाइबल में लिखा, उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, हमारी शर्मिंदगियों को उठा लिया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आपको शर्मिंदगियों के नीचे रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए उत्तर बन के आ चुका है, आपके लिए दया करने के लिए आ चुका है। उसने कहा सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। आज सत्य है, बस इसे जानने से, इसके बारे में सुनने से लोगों पर दया हो जाती है। हालेलुया।
तो यीशु मसीह ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रोगों से उन्हें चंगा किया। मैं भी तो शारीरिक रोगों में था, मैं भी तो मानसिक रोगों में था। आप कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? आप बताओ आपकी लाइफ में क्या हुआ, मेरी लाइफ में क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। 2010 में मैं एक नवा शहर में एक शोरूम पर, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था, सेल्समैन का काम करता था और 1500 में कमाता था। मुझे किराया निकाल के राहों से बस मेरी जाती थी, नवा शहर से आती थी, राहों से बस जाती थी और पिंड को। तो मेरा 1500 मुझे बचता था। गरीबी में था, बीमारियों में था, डिप्रेशन में था, चिंता में था। और मैं सोचता था डिप्रेशन की तो, चिंता की तो कोई मेडिसिन भी नहीं। मैं सोचता इसका क्या हल है जो मेरे साथ हो रहा, जो मेरे ऊपर बोझ है? कोई हल नहीं आ रहा है। कहीं भी घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई हल नहीं नजर आ रहा है। जब लाइफ में एक बार दुखी हो गए, एक बार कहा गॉड अगर तू है तो कृपया मुझ पर दया कर। मैं मानता हूं तू है, पर इतने रास्ते में कैसे पहचानूं सच्चा रास्ता कौन सा है? कैसे पहचानूं मैं सच्चाई को? अगर तू है कृपया तू ही मुझ पर दया कर। रोने लगा। किसी फोटो के आगे नहीं, किसी मूर्ति के आगे नहीं, किसी धर्म के गॉड के आगे नहीं। तो क्रिश्चियन एक धर्म नहीं है, धर्म तो इंसानों ने बनाए। क्रिश्चियन नहीं, बाइबल में केवल यीशु मसीह है, परमेश्वर है। धर्म तो एक इंसान ने अपनी अपनी कैटेगरी बना ली। मैं इसमें पैदा हुआ, मेरा धर्म नहीं है। मेरा तो धर्मों से आपको बाहर आना होगा अगर आपने परमेश्वर से दया लेनी। यहां पर सभी धर्मों के लोग यहां पर मौजूद है, सभी धर्मों से आए लोग, सभी धर्मों से आए लोग। परमेश्वर ने इन पर दया की, ये परमेश्वर के पीछे चल पड़े। परमेश्वर ने इनके जीवन में चंगाई दी, छुटकारा दिया, नशे से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया। यहां पर कोई है जो कत्ल करने वाला था, लड़ाई झगड़े करने वाला था, पाप में था, नशा करने वाला था, नशा बेचने वाला था, आज वो छोड़ के आजाद होके आज शोभा यात्रा में मौजूद है। सेवा कर रहे हैं लोग, कोई कैमरा चला रहा है, कोई क्रॉस पकड़ के खड़ा है, कोई वचन लेके खड़ा है। तो कोई परमेश्वर ने इनकी जिंदगी को बदल दिया। ये सारी चर्च की टीम है। तो परमेश्वर ने कैसे यूथ को बदल रहा है, कैसे जवान बहने, जवान भाई चर्च में आके आजाद हो रहे हैं। ये परमेश्वर की दया है और वो आपकी लाइफ में भी दया करना चाहता है, आपको भी छुटकारा देना चाहता है। पर उसने कहा जो कोई मेरे सामने दीन होगा मैं उस पर दया करूंगा। बस छोटा सा काम है, दीन होना है। आप डॉक्टर के पास जाके ये नहीं कहते डॉक्टर साहब जल्दी मेरी मुझे मेडिसिन दो, मुझे जाना है, मुझे बहुत काम है। आप डॉक्टर के साथ दीन हो जाते। डॉक्टर उंगली चलाता, अरे आराम से बैठ, चुप कर, मेरी बात को सुन। आप दीन हो जाते तो डॉक्टर आपको इलाज करता है। समझ पा रहे हैं? तो आपको स्पिरिचुअल डॉक्टर जीसस के आगे भी दीन होना है, दया होने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो यीशु मसीह पापियों पर दया करने के लिए, पापियों को बचाने के लिए आए। बस आपको बस दिल खोलना है और बस एक इच्छा रखनी चीजों के बारे में जानने की। और जब मैंने भी पहली बार पिंड और में एक घर में प्रभु के दास ऐसे आए थे, 10-15 लोग थे, मैंने वचन वहां पर सुना और मुझे अच्छा लगा और मैंने चर्च की किताबें पढ़नी शुरू की, बाइबल पढ़ना शुरू की। और उसके बाद मैंने पिंड और में चर्च थी, मैंने चर्च में जाना शुरू किया। जैसे जैसे मैं चर्च में जाता रहा, मैं एक जट सिख फैमिली से, पहले मुझे मुश्किल सा लग रहा है ये क्या बोलते हैं, हालेलुया, ये जेएमसी बोलते हैं, ये ऐसे नाच के वर्शिप करते प्रभु का धन्यवाद, ये क्या करते हैं। पर धीरे धीरे मैंने अपनी शर्म को उतार दिया। आज कई लोग यहाँ पर खड़े होंगे, उनको शर्म आती, शर्म के मारे मुझे शर्म आती है। अगर मैं ध्यान से सुनने लगूंगा वचन, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त क्या सोचेगा, ऐसे ये बड़ा सीरियस होकर सुन रहा है। आज हर एक को जरूरत है, कौन नहीं दुखी। तुम लोगों के सामने खुश हो सकते हो, पर तुझे पता है तेरे दुख कौन है। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तेरे उन दुखों को दूर करूंगा जो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपके उन दुखों को दूर करने के लिए आया है। मैं भी तो दुखी था, परेशान था, थक चुका था, हार चुका था अपने जीवन से। +2 में मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, मेरे ऊपर केस लग गया जब मेरी एमपीडी गैड मेरे से पकड़ी गई। यहां मैंने डाली थी, मैं नकल मारता था और क्योंकि पढ़ाई में बुरी संगत ने मेरे चित्र को बिगाड़ दिया था। 8वीं क्लास तक पहले नंबर पर आने वाला व्यक्ति, जब बुरी संगत में बुरे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हो गया, स्कूल में घूमने वाले लोग, एक कापी डाल के स्कूल जाने वाले, हम सोचते हैं हम इतनी भारी कैट उठा के बड़ी बड़ी किताबें क्यों उठा रहे हैं, ये तो पढ़ाई नहीं करते। उनको देखकर हमारी भी लाइफ ऐसी, घूमने लगे, गेड़ियां डालने लगे, घूमने लगे, पढ़ाई छोड़ दी। तो +2 में गाइड पकड़ी गई, केस लगा, फ्लाइंग आई, केस लगा कि आज से 3 साल तक तू पढ़ नहीं सकता, +2 के एग्जाम नहीं दे सकता। टूट गया, डिप्रेशन में, शर्म आ रही है, कैसे लोगों के बीच में जाऊं, वो लड़कियां, वो लड़के, वो स्कूल के क्लासमेट, वो फ्रेंड्स, उनके बीच में मुंह दिखाने के जोग में एक बंद कमरे में रो रहा हूं।
निराशा में हूं, पर जीसस ने मुझ पे दया की। एक घर में आया वचन और उसने कहा अमृत वहां पर जा और मेरे वचन को सुन। और जैसे मैंने वहां पर उस वचन को सुना और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदलना था। मैंने नहीं ढूंढ रहा, मैं नहीं कहता कि मैं ऐसे भक्ति करके मैंने जीसस को पा लिया। मैंने नहीं जीसस को पाया, कोई जीसस को नहीं पा सकता। जीसस खुद, यीशु से खुद दया करते हैं लोगों को चुनने के लिए। हालेलुया। कई लोग कहते हैं तूने अपना धर्म बदल लिया, तूने अपना धर्म छोड़ दिया, तूने अपना धर्म बदल लिया, तू ईसाई बन गया, तू क्रिश्चियन बन गया। मैंने कहा मैं ईसाई नहीं, मैं सही बन गया हूं। पहले पाप में था, बुराई में था, अब सही बन चुका। तो लोग सोचते क्या तूने धर्म चेंज कर लिया? मैंने कहा मैंने धर्म नहीं चेंज किया। बाइबल में लिखा है हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है। तो मैंने नहीं मान लिया जीसस को, जीसस ने दया करके मुझको चुना है अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपने प्रचार के लिए। हालेलुया। तो जो अगर आपको दया करनी है तो परमेश्वर जिसको चुना है उस पर दया कर देगा। दूसरा, अगर आप कहें प्रभु दीन हो जाए, प्रभु मुझ पर भी दया करना, प्रभु मुझ पर भी दया करना। हालेलुया। ऐसे भीड़ जा रही थी और भीड़ लगातार जा रही थी। वहां एक व्यक्ति था जो जीसस को देखना चाहता था। भीड़ की भीड़ जा रही है, वो जीसस को देखने के लिए कद का मदरा था। वो एक बड़े दरख्त पर चढ़ गया, जैसे हम स्टेज पर खड़े, वो एक बड़े दरख्त पर चढ़ गया कि जीसस जहां पर ऐसे यहां पर जाए तो मैं उसे देख पाऊं, अपने मन की खुशी पूरी कर पाऊं। हालेलुया। पर बाइबल ने कहा जब जीसस वहां पर से गुजरे, जीसस ने देखा इसके अंदर एक्साइटमेंट है मुझे देखने की, और यीशु से ने कहा हे चक्की नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर भोजन करूंगा। हालेलुया। तो जीसस ने खुद चुनाव किया मैं तेरे घर जाऊंगा। और जैसे जीसस उसके घर में गए, उसको पवित्र आत्मा ने छुआ, परमेश्वर की पवित्रता ने छुआ। उसने क्या जितना भी लोगों को लूटा हुआ था, लोगों को टैक्स लेकर, लोगों से चुरा कर, लोगों को ठग के किसी भी तरीके से पैसे लूटे थे, उसने अपनी गुथड़ियां खोली, अपनी दीवारों को, जैसे लोगों ने ब्लैक मनी छिपाई होती है ऐसे उसने सारा पैसा छिपाया था। उसने निकाला उसे, उसने कहा जिससे मैंने लिया है मैं उसको 3 गुना करके वापस देता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैंने किसी को लूटा है तो मैंने, अगर किसी के मैंने 1000 लिया था और आज मुझसे 3000 वापस कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा आज इस वृक्ष के घर में उतार आया है, ये बंदा बदल चुका है। हालेलुया। जब आपने पाप छोड़ दिए, आपने परमेश्वर को प्राप्त करने का चिन्ह एक ही है, आप बहुत भक्ति करते होंगे। जब तक आपके पाप, आपका जीवन नहीं बदलता, तब तक आपने अभी तक पर गॉड को, परमेश्वर को नहीं पाया। तो जीसस चाहते हैं चिन्ह क्या होगा? आपका जिंदगी बदल जाएगी। आप गुस्सा करना बंद कर देंगे, गालियां निकालनी बंद कर देंगे, लड़कियों को बुरी निगाह से देखना बंद कर देंगे, आप विचार से आजाद हो जाएंगे, नशों से आजाद हो जाएंगे, आप बुराई से आजाद होंगे, लड़ाई झगड़ा क्लेश करने से, अपनी वाइफ से वफादार हो जाएंगे, आप बदल जाएंगे। क्योंकि जीसस आपकी लाइफ में जब आता है आपका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। तो मैं यही बताना चाहता हूं, जीसस मेरी लाइफ में आए और मैंने जीसस को जानना शुरू किया, चर्च जाना शुरू किया। 2010 में जीसस में आया, चर्च जाना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस करना शुरू किया और परमेश्वर ने मुझे बढ़ाना शुरू किया, आशीष पर आशीष देना शुरू की। आज मेरा अपना कपड़ों का शोरूम है और परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा में चुना हुआ है, अपनी सेवकाई के लिए, हजारों लोगों के लिए। जो एक व्यक्ति दुखों से मरा हुआ था, सोचता था मैं इसको बेकार हूं, मैं बेकार हूं, मैं बेकार हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं रिजेक्टेड हूं दुनिया में, मैं बेकार हूं, मैं बेकार हूं, जो कह रहा था, आज उसी बेकार को कितने लोग भीड़ सुनने के लिए खड़ी हुई है। ऐसे तुम सोच रहे होगे कि मैं तो बेकार हूं, मैं तो बेकार हूं, मैं तो किसी काम का नहीं, ना तो मेरा कोई मुझे समझता है। मैंने कहा आपकी मिट्टी जिंदगी को आज परमेश्वर सोना बना देगा। ये बातें नहीं है, लिखा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। बातें कोई भी कर सकता है, बातें कोई भी कर सकता है, बातें कोई भी आके, आज दुनिया पर स्टेज में बड़े बड़े सिंगर है, बहुत कुछ बोलने वाले, बोलने के बड़े टैलेंट उनके अंदर है, तो बातें कोई भी कर सकता है। पर परमेश्वर आज केवल बातें नहीं कर रहा है, वो आपकी जिंदगी को बदल रहा है। हालेलुया। ओके, कैसी जिंदगी बदलेगी? अगर आप चाहते हैं जीवन मुझ पे दया करे, तो बस अपनी आंखों को बंद करना है और कहना है यीशु मुझ पे दया करे। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा आपके सारे दुखों को दूर होने के लिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको पुकारता हूं। आपने भीड़ को देखकर उन पर तरस खाया और उन्हें शारीरिक और मानसिक रोगों को चंगा किया है। हे पवित्र आत्मा, यहाँ पर भी एक बड़ी भीड़ है, जहां पर भी एक बड़ी भीड़ है जो तुझे सुन रही है, जिन्होंने तेरे वचन का आदर किया। हे परमेश्वर, तेरे ही वचन में लिखा है, मैं एक वकील की तरह तू तेरे उस जजमेंट के सामने आता हूं परमेश्वर, इन लोगों को लेके। प्रभु, तेरे ही वचन में लिखा है, जो कोई मेरा वचन सुन के उस पर विश्वास करे
मैं अनंत जीवन तक उसकी रक्षा करूंगा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने तेरे वचन को सुन के आदर की अपना मन खोला और आंखें बंद करके इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं और अपने मन में कह रहे हैं, हे प्रभु यीशु मुझ पर भी दया कर। इस दास के जीवन में जैसे तूने दया की, इन लोगों की जिंदगी को इस भीड़ की जिंदगी जैसे बदली, हे प्रभु यीशु मुझ पर भी दया कर। मैं घमंडी होके तेरे सामने नहीं खड़ा हुआ, मैं दीन हो रहा, अपना मन खोल रहा हूं तेरे सामने। हे प्रभु यीशु मुझ पर भी दया कर। हे प्रभु जो ऐसी प्रार्थना कर रहा है, अपने वचन को उसके ऊपर पूरा करें, अपने वचन की सामर्थ को उतारे खुदावन। हे खुदावन, मुझे बीच में से निकाल दे खुदावन। तेरा ही वचन इनकी लाइफ में अब पूरा हो चुका है खुदावन। इन्होंने तेरे वचन का आदर किया खुदावन। तूने कहा जो मेरे बेटे का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। इन्होंने तेरा आदर किया खुदावन, तो अपनी महिमा को इनके ऊपर प्रकट करे खुदावन। जितने यहाँ पर शारीरिक रोगी है खुदावन, ये तेरे नाम में वो चंगे हो जाए प्रभु, यीशु के नाम में वो चंगे हो जाए। मैं तेरी दया को मांगता खुदावन, वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए खुदावन। जितने लोग यहाँ पर मानसिक रोगी है, चिंता में, डिप्रेशन में खुदावन, डर घबराहट में खुदावन, उनके सारे मानसिक रोग दूर हो जाए सर्वशक्तिमान प्रभु। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, शोभा यात्रा को यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं, फेसबुक में लाइव देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में लाइव देख रहे हैं खुदावन, उनको भी दे छूले मेरे परमेश्वर। तेरी दया उनके जीवन के ऊपर मांगता हूं परमेश्वर, तेरी कृपा उनके जीवनों के ऊपर मांगता हूं। सब प्रकार के नशे से लोग आजाद हो जाए, सब प्रकार के बुरे कामों से लोग आजाद हो जाए। जिनकी पत्नी बीमार है वो हील हो जाए, जिसका पति रोगी है वो हील हो जाए, जिसके बच्चे नशों में वो आजाद हो जाए, जो डिप्रेशन में वो फ्री हो जाए, जो चिट्टा के नशा लगाते हैं, वो जो ड्रिंक करते, नशा करते, चोरियां करते, वो आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरी दया इन लोगों पर खुदावन। जितने कारोबार राहों के लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जितने भी लोग राहों में यहाँ पर कारोबार शुरू करें खुदावन, उनके कारोबार सफल हो खुदावन, उनके कारोबार ब्लेस हो खुदावन। जिस तरह पिछले साल में यहाँ पर आया था खुदावन और मैंने प्रार्थना की थी खुदावन, मांगा था यहाँ के लोगों पर, और आज मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े कारोबार राहों में एक साल में खुल चुके हैं खुदावन, और लोग ये ब्लेस हो रहे हैं खुदावन। ये तरक्की हो खुदावन, ये शहर की, ये लोग की खुदावन, ये एरिया की खुदावन, यीशु के नाम में यहाँ के प्रशासन ब्लेस हो, यहाँ पर उच्च अधिकारी ब्लेस हो खुदावन, और एक एक जूत पर, भाइयों पर, बहनों पर दया करे खुदावन। जो जूत पढ़ाई करते करते स्कूल कॉलेज जाते खुदावन, बुराइयों में, बुरी चीजों में फंसे हुए खुदावन, और अपना भविष्य, अपनी लाइफ को खराब कर रहे खुदावन, उन पर दया करे, वो अपने पापों से मन फिराएं और वो लौट आए तेरे पास। सब सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं तेरी दया को मांगता खुदावन, हर एक खुदावन रूह बचाई जाए खुदावन। ये भी तेरी भटकी हुई भेड़े खुदावन, सब पर दया करे, दया करे। शूले पवित्र आत्मा, शूले पवित्र आत्मा, शूले पवित्र आत्मा, शूले पवित्र आत्मा। बीमार चंगे हो जाए यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा के बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। आपके कारोबार, आपके जीवन ब्लेस हो यीशु के नाम में। आपकी जॉब में आपको आशीष मिले, आपके बिजनेस में आपको आशीष मिले, आपके परिवार में आपको गुड न्यूज मिले, आपके बंद रास्ते खुल जाए। जो कुछ भी आप यीशु के नाम में इस समय मांग रहे हैं वो प्राप्त करो यीशु मसीह के नाम में, वो प्राप्त करो यीशु मसीह के नाम में। जितने भी लोग इस शोभा यात्रा में जुड़े हैं, आप सुन रहे हैं, मैं खुदावन का दास होने के नाते आपके ऊपर बरकतों की बारिश की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर चमत्कारों की बारिश की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।